मैं डिप्रेशन से गुजर चुका हूँ एंड आज अगर मुझे कोई देखता है या मुझसे मिलता है या मेरे इंस्टाग्राम को देखता है, उसको लगता है कि मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव बातें करता हूँ, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है। लेकिन कुछ साल पहले ये बात नहीं थी। कुछ साल पहले बहुत बहुत बुरे वक्त से गुजरा था। आप मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे कैसा लगा जब मुझे पता चला सुशांत पास्ट अवे। मुझे बहुत बुरा लगा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर, मुझे बिलीव नहीं था कि सुशांत इज पास्ट अवे। और पहले 10-15 मिनट तो मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगा शायद कोई और एक्टर है जिसका नाम सुशांत सिंह है। हमारा ये सोचना कि हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, क्या वो गलत है? ये डिबेटेबल है। क्या हमारे माँ बाप हमें हेल्प करें कि हम अपनी जगह बना सकें, क्या वो गलत है? ये डिबेटेबल है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ। ਆਰਿਆ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? How you doing? I'm doing great. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सच्ची कहा, इतनी खुशी हो रही है तेनू देखकर। ठीक है ना, तेरा वेट बढ़ा ना तेरा वेट घट होया। तू इन्ना वधिया तरीके नाल तूने मेंटेन किया ना अपने आप ਨੂੰ, मैं दस नहीं सकता। मैं कंसिस्टेंट रखा हुआ है सारा कुछ, मैं कुछ खाना पीना घट नहीं ना करता ऐसे करके। You know you're glowing. You're glowing on your face. ग्लो इंसान ਦਾ ਫੇਸ ਨਾ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੌਜ਼ ਲੱਗਾ? I think I think more than just entertainment industry, भवनीत, सब तो बड़ा पॉज है आया है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जो है ना लाइफ एक स्टेप पीछे लेके लाइफ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ है। and on a very serious note समझा कि लाइफ ਸਾਡੀ कितनी सुपरफिशियल है, कितनी ज्यादा सुपरफिशियल लाइफ है साडी। ਅਸੀਂ ਗੋਲਸ जो है ना सोचते हैं कि ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਾਰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ COVID-19 ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। what really matters is that you're alive and ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। so I think that is a very big lesson what COVID-19 has taught me। ਤੇ ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਸਮਹਾਉ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ, ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਰਚ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। एंड बट लॉकडाउन करके कोविड करके वो शूटिंग स्टॉप हुई। एक दो होर स्क्रिप्ट सी जिन्हां नूं मैं उस वेले पढ़ रहा सी, बट एवरीथिंग केम ऑन अ स्टैंड स्टिल। तुसीं कह सकते हो कि काम करके वो पॉज च आया। बट फिर भी मैं कहांगा कि मैं बहुत लकी एक्टर हाँ, क्योंकि मेरा जिवें तुसीं कह सकते हो ना, हुण अनलॉक पीरियड जो चल रहा है ना, एक क्वारंटाइन अनलॉक पॉइंट, you know, 2 वर्जन है जो भी इन्हों कह रहे हैं। I am one of the few actors जिन्होंने मौका मिला है कि मैं काम कर रहा हूँ वापस जी, मैं जा रहा है बाहर, मैं दोबारा मैं काम शुरू किया है and I'm again shooting, I'm on a set and I am so happy about that। की कुछ शूट करना शुरू कर देता आ रहे हैं आजकल? यार honestly दो चीज़ें शुरू की हैं जी, एंड हाले तक मैं किथे भी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ना कुछ, बस Instagram ਤੇ थोड़ी जी स्टोरीज पाई हैं कि यार मैं शूटिंग कर रहा हूँ, किस दिन आज शूटिंग कर रहे हैं, किड़ी शूटिंग चल रही है, की है, किसी को कुछ नहीं पता है। बिकॉज आई एम मोस्ट हैप्पी एट दिस मोमेंट
एंड मैं मोस्ट हंबल हाँ एट दिस मोमेंट कि मैनू रब ने मौका दिता यार कि मैं दोबारा सेट ते जावां ते मैं रोल कैमरा साउंड एक्शन ए लव सुना ते मैं वापस एक्टिंग करन दा मैनू मौका मिलिया। किन्ने सारे मेरे दोस्त हैं जो घर बैठे हुए हैं इस वेले, बिल्कुल, and I'm one of the few lucky people who have got the opportunity to work right now, and I'm most happy about that. Yeah, I'm shooting 2 things right now, Bhavneet. मैं basically Bhavneet मेरी 2 shootings चल रही हैं। एक तो वेब सीरीज है जो MX Player में नाल है, दूसरी शूटिंग जो है वो मेरी एक OTT फिल्म है, it's a digital film, and I'm shooting that. And I'm very glad that I'm getting to shoot these 2 projects right now. यानी कि दो हिंदी प्रोजेक्ट शुरू कर ले तुसी? हाँ, 2 हिंदी प्रोजेक्ट। क्या बात है। वैसे डिजिटल एरा जिदा शुरू होया है, बहुत सारी फिल्मां डिजिटली रिलीज हुई हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ? बिल्कुल, आई थिंक डिजिटल जो है वो काफी सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स ਲਈ बहुत ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पैंदा कि इस प्रोजेक्ट च कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या एक्टर है कि नहीं है। व्हाट मैटर्स इज ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਿजिटल ਚੈਨਲਸ हैं ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂ نو। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ बहुत ਵਧੀਆ भी है, बहुत बैड टाइम भी है, मैं कहूँगा, क्योंकि कदे-कदे कोई माड़ी चीज भी है ना वो भी लोग की देखते रहे जी, you know, because they are like we just need to watch something, so that is also happening right now, but मैं ए चीज नु कहूँगा कि जरूर कि सिनेमा है, you know, and you can't compare digital or TV to cinema, you know, this is a phase, like when TV had come, you know, there was a phase that TV आ गया भाई, अब सिनेमा कोई नहीं जाएगा, हूं TV है, but cinema in a similar way digital yes exists, Netflix is there, Amazon, Hotstar, all these great channels are there, you know, platforms are there, but cinema जो है cinema ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ novelty रहेगी, और ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗਾ, you know, ਜਦੋਂ ਵੀ it will get cured, whatever will happen, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ things ਜੋ ਹੈਗੀ it will get back to normal। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਉਧਰ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਟਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। मैं एक शूटिंग बॉम्बे की थी, मैं शूटिंग बारे गल करांगा पहले। मैं शूटिंग बॉम्बे की थी एंड बट प्रोड्यूसर टुक प्रॉपर केयर, उन्होंने प्रॉपर इंश्योरेंस कराई सब दी, उस तो बाद शूटिंग शुरू हुई एंड प्रॉपर बूथ्स वर देयर व्हिच वर सैनिटाइजेशन बूथ्स, 4 टाइम्स सैनिटाइज हुआ सी पूरा सेट, साडे मेकअप रूम्स, यू नो, makeup man and the entire crew who were behind the camera, सारे ने PP kit पाया हुआ है, but हम ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮਸ ਬਲੌਕਿੰਗਸ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਯੂ نو, ਗਲਵਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਯੂ نو, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ we will have to take the masks off, ਉਸ ਵੇਲੇ we will have to take the gloves off, and we will hold each other, or we will do action, or we will laugh, or we will ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫਾਈਵ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ करना होगा ही होगा। एज एन एक्टर प्रॉब्लम भी की होंगी ना, ਜਦੋਂ एक्टर एक्शन सुनता है ना उस तो बाद एक्टर को याद नहीं रहता कि कोविड-19 है, 2019 है, ਉਹਨੂੰ याद नहीं रहता, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। we completely go into the phase of what we are performing, do not remember also कि यार social distancing रखनी जरूरी है कि नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ? Yes, we just bought this beautiful apartment. Jasmine and I bought a beautiful apartment here at Juhu Beach. It's a sea facing
apartment. We were gonna start with the interiors, but हो गया ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, and she has made this house a home. She's like a blessing the way she's done this up. ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। बहुत प्यार तरीके नाल सारे काम कराए होंगे। अच्छा, सिर्फ खाने से सारे पाजी सारे मतलब चाहे डिशेस होवे, चाहे झाड़ू पोछा होवे, you know, I think clothes also सारे काम करते भाजी। दोनों की लगता है अभी मैं लीन हो गया, दोनों की लगता है ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਟ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚ। ਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਯੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। जी I would like to answer this in Hindi because I want that this answer should reach as many people as possible. जी सबसे पहले मेरे पीआर ने मुझे कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर मत करना, ये पूछा जाएगा और इसका आंसर मत करना। But I trust you and I will answer this question to you, Mani, because it is honestly something जो हर इंसान को इस समय जकड़े बैठा है, और वो है डिप्रेशन। एंड पहले मैं सिर्फ डिप्रेशन बारे बात करूंगा और कोई चीज की बात नहीं। मैं डिप्रेशन से गुजर चुका हूँ, एंड आज अगर मुझे कोई देखता है या मुझसे मिलता है या मेरे इंस्टाग्राम को देखता है, you know, उसको लगता है कि मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव बातें करता हूँ, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है। लेकिन कुछ साल पहले ये बात नहीं थी। कुछ साल पहले बहुत बहुत बुरे वक्त से गुजरा था, और मेरा बात बुरे वक्त का ये नहीं है कि ओ माय गॉड मेरे पैसे, मेरा बैंक में पैसे हैं कि नहीं है, या मेरे पास ये है कि नहीं है। डिप्रेशन होता है जब आप मेंटली फिट नहीं होते, जब आप जो है अलग अलग रीजंस हो सकते हैं आपके साथ, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको कंटिन्यूसली फील कराएं कि आप बकवास हैं, आप में कोई बात नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है। और उसका हल भी 50 चीजों से निकल सकता है कि आप जाकर बात करें, आप डॉक्टर से जाकर बात करें, आप अपने लव्ड वन से बात करें, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको निकलना है तो एक ही तरीके से आप इससे निकल सकते हैं कि आप ठान लें कि आप इससे निकलना चाहते हैं। बिल्कुल, और तुसी ठानिया सी ऐसे करके तुसी उससे निकले। बिल्कुल, This is the only reason उससे बाहर निकल पाया, और कोई रीजन था नहीं। मैंने बोला I will get out of it, और मैं उससे बाहर निकला। मुझे वक्त लगा, लेकिन मैं उससे बाहर निकला। नहीं तो आप ये देखिए, मेरी लास्ट फिल्म गांधी फिर आ गया, आपको पता है इंटरनली मैंने उस फिल्म के लिए कितनी मेहनत की। आपको पता है मैंने उस फिल्म के लिए, मैं एक ऐसी फिल्म कितने वक्त से चाह रहा था कि मुझे मिले जी, और मैंने कितनी मेहनत की उस फिल्म पर, पागलों वाली मेहनत की। ठीक है, शायद ही मैंने अपनी लाइफ में कोई और फिल्म पर उतनी मेहनत की होगी जितना मैंने गांधी फिर आ गया फिर, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने कोई पब्लिसिटी नहीं की फिल्म की, एक दूसरे के साथ लड़ते रह गए। ठीक है, फिल्म चाहे अच्छी बनी हो बनी हो, दैट्स अ सेकंड पॉइंट। ठीक है, फिल्म ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाई। रिलीज भी ऐसी हुई कि मतलब किसी को पता ही नहीं था कि रिलीज हुई, क्योंकि वो आपस में ही लड़ते रह गए, पोस्टर ही नहीं लगे, कुछ नहीं हुआ। रेडियो जिस दिन फिल्म रिलीज थी उस दिन रेडियो था, उस दिन रेडियो इंटरव्यू हुआ जिस दिन रिलीज थी, गाने नहीं रेडियो पे चले, जब उसके गाने भी ठीक ठाक थे। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार इसके बाद कोई भी आदमी डिप्रेशन में जा सकता था, इस फेलियर के बाद कोई भी आदमी डिप्रेशन में जा सकता था, बट गॉड helped me and I did not at all go in depression, and the reason I did not go in depression was only one, क्योंकि I had told myself this कि मैं इस फिल्म पर इतनी मेहनत करूंगा कि साला कल ये फिल्म चले तो I'll feel fantastic about it। साला मैंने मेहनत की, 1 साल फिल्म चली,
और अगर फिल्म नहीं चले तो आई कैन लुक बैक से कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना 100% के ऊपर डाला था ना। फिल्म नहीं चली वो किसी और चीज की वजह से होता है, मेरी मेहनत या मेरे काम पर साला कोई उंगली उठा के दिखा दे, वो कभी क्योंकि मैंने अपने 100% के ऊपर, दैट इज द रीजन आई एम स्टिल गेटिंग वर्क, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਠਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਕ ਖਾਸ ਕਰ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਰਿਸੀਵ ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? Bhavneet, we are still not sure if it was depression or if it was something else. बिल्कुल, ਹੁਣ CBI ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ लगेगा कि ਕੀ कुछ है। That CBI is going to investigate. जी जी। आप मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे कैसा लगा जब मुझे पता चला सुशांत passed away, मुझे बहुत बुरा लगा। For the longest time, for almost half an hour to 1 hour, मुझे believe नहीं था कि सुशांत is passed away। और पहले 10-15 मिनट तो मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगा शायद कोई और एक्टर है जिसका नाम सुशांत सिंह है, शायद वो। मैं ये बिलीव नहीं करना चाह रहा था कि सुशांत इज पास्ट। सच अ गुड लुकिंग गाय, सच अ गुड एक्टर, ग्रेट फिजिक, सक्सेसफुल गाय। His name came in the first 10 actors यार। हाँ बिल्कुल, 10 actors में उसका नाम आता था यार सेलेब्रिटी में। अगर प्रोड्यूसर आप फिल्म बना रहे हो तो उसका नाम आता था यार कि आप इस आदमी के साथ फिल्म बना सकते हो। हमने उसके साथ थिएटर किया है यार, इनिशियल इयर्स में हमने उसके साथ थिएटर किया है यार। मैंने आई हैव हंग आउट विद हिम। इट वाज मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी माँ के लिए, माय मदर हैज टॉट हिम यार, मेरी माँ के लिए इट वाज अ वेरी, मतलब आई हैड टू गो एंड बी विद माय मदर। मेरी माँ बहुत ज्यादा अपसेट थी यार, you know, must have been as upset as his family must have been, his father must have been, you know, and it was very sad। बिल्कुल very sad। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਬਟ ਸਮਵੇਅਰ ਸਮਹਾਉ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਣ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਣ, ਮਿਹਨਤ ਉਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? इस पर मैं जो भी बोलूंगा ना, हमने ये दो-धारी तलवार है ये वाला क्वेश्चन। मैं आंसर जरूर दूंगा तुझे, मैं आंसर दूंगा तुझे, भागने की कोशिश नहीं करूंगा मैं तेरे आंसर से, लेकिन मैं तेरे को पहले से बता दूं, इसका जो भी आंसर होगा ना वो पूछ लो, ये 50% पसंद आया जाएगा और 50% नापसंद किया जाएगा, बट इसका आंसर देना भी जरूरी है जी। Just let's look at it from the angle of राज बब्बर साहब for a second। बब्बर साहब टूंडला में पैदा हुए, आगरा में पैदा हुए, टूंडला में उनकी परवरिश हुई, ठीक है, जिसके बारे में भी कोई नहीं जानता कि आगरा के पास एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम टूंडला है। वहां से बब्बर साहब ने डिसाइड किया कि जी मैं एक्टर बनूंगा। उन्होंने मेहनत करते हुए वो बंबई आए और वो एक बहुत बड़े एक्टर और बहुत बड़े स्टार बने। आज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एक्टर्स और एक बहुत नेक और शरीफ पॉलिटिशियन जी, राइट। अब उनका बेटा है आर्य बब्बर, उनका बेटा है प्रतीक बब्बर, उनकी बेटी है जूही बब्बर। इन तीनों ने कोई अर्जी तो नहीं भरी थी कि हमें बब्बर साहब के यहाँ पैदा होना। ये तीनों पैदा हो गए, ठीक है। अब इनकी माँ भी एक्टर है, थिएटर पर्सनालिटी, उनके पिताजी भी बहुत बड़े एक्टर हैं और थिएटर पर्सनालिटी। बाय डिफॉल्ट इनमें एक्टिंग के जीन्स आ गए। इस वजह से भी आते हैं क्योंकि हमारी परवरिश वैसी जगह पर हुई जी जी। बॉम्बे में एक बहुत बड़ा पृथ्वी थिएटर है जी, ठीक है। मेरा आधा चाइल्डहुड प्लेग्राउंड में नहीं पृथ्वी थिएटर पे गुजरा है, क्योंकि माँ वहां रिहर्सल करती रहती थी, तो हम लोग स्कूल के बाद वहां आते थे। तो मुझे स्टेज पे खड़ा होना कोई स्कूल में टीचर ने नहीं सिखाया था। मैं तो स्टेज पे आके खड़ा ही हो जाता था। हम खेलते थे वहां पर, हमारे लिए वो प्लेग्राउंड था जी।
तो मेरे दिमाग में या मेरे दिल में कभी स्टेज फियर तो था ही नहीं यार। तो आई वॉज born in this world, so by default I would have wanted to be a part of this world जी। और वही मुझे लगता है बहुत सारे उन बच्चों के साथ होता है जो इस इंडस्ट्री में पैदा होते हैं ऐसे माँ बाप के पास, जो स्ट्रगल करके इस इंडस्ट्री में पड़े हुए, अपनी जगह जिन्होंने बनाई। अब हमारा ये सोचना कि हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, क्या वो गलत है? ये डिबेटेबल है। क्या हमारे माँ बाप हमें हेल्प करें कि हम अपनी जगह बना सकें, क्या वो गलत है? ये डिबेटेबल है। क्या कोई बाहर अपने बेटे को, उसका एक बहुत बड़ा बाप कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसका बेटा उसकी बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है या खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता है और वो बाप अपने बेटे की बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो क्या वो बाप गलत है? बताओ भाई, क्या वो बाप गलत है? बिल्कुल, ये सारी चीजें उस पे आती हैं कि कहीं ना कहीं हर नेपोटिज्म या ग्रुपिज्म की गल करिए तो हर इंडस्ट्री दे विच है ना। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम अभी लोगों में गुस्सा है, अभी लोगों में बहुत गुस्सा है और उसके फैंस में गुस्सा है और अभी उनको एक सोल्यूशन चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत लोग हैं, बहुत एक्टर्स हैं और बहुत लोग हैं जो पर्सनल वेंडेटा बनाकर इस इशू में कुछ लोगों को थप्पड़ मारना चाह रहे हैं, जो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, उन्होंने और काफी हैं जो पब्लिसिटी एंगल पर बनाकर अपनी फिल्में या अपनी चीजों को हिट कराने के लिए बोल रहे हैं कि हम भी सुशांत की तरह हैं, हम जो है आउटसाइडर हैं, आप हमें सपोर्ट करिए। ऐसे भी लोग, हाँ ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो मैंने कभी इस इशू पर कभी कुछ ज्यादा ना डाला ना बोला, क्योंकि यार वो मेरा दोस्त है। मैं उसके नाम पर पब्लिसिटी खींचूंगा यार? मतलब इससे ज्यादा चीप या इससे ज्यादा लो ग्रेड चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल। पर ये हो रहा है और बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशंस हो गई भवनीत। ऐसा लग रहा है नहीं, बट एक्चुअली मुद्दा और क्योंकि ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯਾਰ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਐਂਡ ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, वो भी मैंने लगता है अक्टूबर ची होगी। So these are happening, you know, and I'm starting to listening to scripts. Besides that, the acting का कम है. Besides that, not many know this. I write also. I like writing. Pushpak Viman, I really know that. And there are a few more things that I have written. And मैं क्रिएट किया है, मैं पढ़ाई भी की है यार न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जाके, स्पेशली डायरेक्शन दी, फिल्म मेकिंग दी, क्योंकि वो मेरा ख्वाब है कि मैंने डायरेक्टर बनना है, मैंने फिल्म मेकर बनना है। दिस होल क्वारंटाइन पीरियड गिव मी टाइम टू इवन वर्क ऑन दैट। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ABP ਸਾਂਝਾ।